मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते ऊर्जा की आपूर्ति न होने से देश में एलपीजी का संकट खड़ा हो गया है। एलपीजी की कमी के बीच स्वदेशी, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने के ईंधन की आवश्यकता भी बढ़ गई है। वहीं डाई मिथाइल ईथर यानी डीएमआई एक आशाजनक विकल्प के रूप में उभर रहा है। आपको बता दें कि डाई मिथाइल ईथर एक रंगहीन, अज्वलनशील और पर्यावरण के अनुकूल गैसीय ईंधन है, जिसे बायोमास, प्राकृतिक गैस या कोयले से बनाया जा सकता है। ये एलपीजी और डीजल का अच्छा विकल्प है। भारत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के घरेलू विकल्प के रूप में डाई मिथाइल ईथर के उत्पादन की योजनाओं में तेजी ला रहा है। दरअसल सीएसआईआर एनसीएल डीएमई के अपने पायलट प्लांट का विस्तार कर रही है, ताकि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी सीएसआईआर एनसीएल में वैज्ञानिकों ने एक पेटेंट संरक्षित डीएमआई उत्पादन प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित की है, जो स्वदेशी रूप से आविष्कृत, अत्यधिक सक्रिय, चयनात्मक और लागत प्रभावी उत्प्रेरक का उपयोग करती है, जिससे मेथनॉल को डीएमई में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो एलपीजी के विकल्प के रूप में डाईमिथाइल ईथर का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पुणे स्थित सीएसआईआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक डीएमआई के अपने पायलट प्लांट को स्केल अप करने पर काम कर रहे हैं। इस पहल का मकसद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और देश को ग्लोबल मार्केट की अस्थिरता से बचाना है। सीएसआईआर एनसीएल एक प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग पार्टनर के सहयोग से 6 से 9 महीनों के भीतर इस तकनीक को औद्योगिक स्तर पर 2.5 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले उत्पादन संयंत्र बनाने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि पुणे स्थित सीएसआईआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक डॉक्टर राजा और डॉक्टर आशीष लेले ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ बताया है। So we belong to CSR NCL laboratory. It belongs to Ministry of Science and Technology. So there are a lot of government push is there, government help is there to develop this kind of work for cater the India's need actually. So we are concentrating from 2004, 22 decades back. We started this kind of chemistry to attain DME with cost-effective way and a legal sustainable way. That's all this lab we made it and everything. This was inaugurated by then Science and Technology Minister Dr. Harshvardhan G. So we developed in syngas to methanol, syngas to direct DME for using syngas. It's got CO plus H2 from wherever it comes, NG, natural gas, or wherever it comes, biomass and everything. And later we concentrated to methanol to DME. It's an indirect route actually. So we concentrated this one. We got a catalyst and we got around 5 patents on this catalyst. One is catalyst manufacturing, catalyst tailoring of the catalyst to need of how much conversion, yield and everything. And another one is process. This process is highly exothermic. Heat evolving reaction is happen. So that heat also will integrate it. We captured that one. We are again utilizing for the reaction. So we have built it for industry standard from the beginning. From the scratch, we talked only is for industry. We know that one day the LPG, the fossil fuel, below the earth, fossil fuel, it has a lot of impurities and everything is there. So we need to cater for the people of India for other way. For above the earth, one is a methanol. Methanol comes in different sources, biomass, coal gasification and everything. So we developed this catalyst. We are getting now around 100%, almost 99.9% conversion, 99.9% selectivity towards DME. There is no impurity. So the downstream of cleaning this process is very, very easy. And then we developed from 1 gram to now, 100 kilogram, 500 kilogram, 1000 kilogram per batch we started. So it means that we can load the catalyst at any cost at anywhere in the India for the people of India. So this is a small journey, but about the catalyst, about the process, very, very elegant process, very simple process, but it doesn't have any impurity, doesn't have anything. So it means that 100% DME I can get it. So that's why my partner is there, industrial partner is there for 250 kpd, as you said in the picture. It is a 250 kpd is there already. It is in Pune only, and our fabricator is here only Pune. So they are willing to give very shortly to cater the need of people of India. So how much DME you can produce in a day? What is the capacity right now, and what are your future plans? We are working with different PSUs, and this due diligence happened in last year with IOCL, the biggest refinery from Indian Oil Corporation Limited. So they validated our process. Successfully we have validated, and we are now talking with ONGC.
So ONGC is willing to put a 2.5 tons per day plant. It is around 2,500 kilogram per day. So once it is validated for semi-commercial demonstration plant, that's all. You can extrapolate to any scale. We are ready to roar. Ready to roll. Yeah. So how it will make an impact, because Yes, of, because this, as per government rules and theoretical, we are having 8% minimum we can do it now. So we are collaborating with LERC. LERC is LPG Equipment Research Center. It's for all oil manufacturing companies putting a body at Bangalore. So we collaborated with them. We are working with them. So this is 8% is nothing, no infrastructure standard and everything. You backside, you can see the stove and everything. So the infrastructure, no need to change. So in that case, as such, you can go for 8%. There is no efficiency loss, wall change or seal change and everything. Above 10 to 20%, we need to change only one seal and everything. So 8%, if you are calculating for these people of India, it is a huge saving for us. See, 8% for example, if it is a PMUI, 10.55 crores, 10.6 crores today. If they are changing a cylinder yearly 4 times or 3 times, 4 months once and everything. If it is there, it is around 14.2 kilogram hours. If a simple arithmetic, we want around 1,800 tons per day for only catering the PMO people 10.5. This is simple arithmetic. So we need more demand and everything is there. But providing, government has to have a regulatory authorities, has to prove it, has to come up, and then logistics, storage, everything is there with the government side. Government is giving very good opportunity, very good support for us. So talking about the cost efficiency. Yes, it is almost equal to LPG. And then problem here is, our advantage here is ultra clean fuel. These are, less PM, particulate matters, less NOx. There is no sulfur oxides, very, very less sulfur oxides. So it's very advantage and efficiency more. Actually, this LHV, lower heat value, is a little lower than LPG, but the efficiency we are compensating. And then the ultra clean fuel. So carbon-carbon bond is not there. So less pollution, less carbon soot. Everything is the advantage for this one. And then now the crisis has come. See, we, as I said, two decades back we started this work. We don't know what is happening, but really we are now ready. Yes, Atmanirbhar, is a make in India, Atmanirbhar, everything. The catalyst is available in India, very abundantly available. There is no precious metal, no very decorative metal we are not putting. A simple process, simple metal, we protect, IP protected. And then it's available plainly. Even you are killing 3 tons, 4 tons, we are ready to give a catalyst within a week or something. So we are ready. It is an entirely indigenous Atmanirbhar, and we developed indigenous development process from catalyst to process. It is a zero discharge plant. It's possible, but we have regulatory authorities and feasibility studies should be done. In any studies done, safety and everything we need to do. 100% DME, I think in the world no one is practicing. For commercial scale, they are practicing somewhere I heard it. But we are not sure. In India, for our people, we need to have some studies, formal studies we need to do. So we started around 2018-19 for the mission mode project, Mission of India. So make in India, Atmanirbhar, whatever, Sagarmala, whatever there. So the idea is they want to replace for the fossil fuel with other alternative fuel. This is ultra clean fuel. We started with 1 gram level with a different catalyst. The catalyst is behind it there. You can see that. So we started with the powder catalyst with 1 gram, 500 milligram and everything. And we started with only one scale there. This is the reactors which we have on 1 gram. We will load it. Once it is ready, we will go for 50 gram. Once it's ready, we are going for this one around 1 kilogram. And then later we can go to around 250 kilogram, everything. So now we are getting 250 kilogram per day DME. So we are employing around 25 kilogram of catalyst at a stage. It is a industry ready process. See, we are not that this catalyst is sturdy, the catalyst is hydrophobic, and then the advantage here is the catalyst working with the pressure. So there is no moving parts in our reactor, no compressors and everything. So we can bottle it from the tail end of this one, downstream. This is advantage for us. Tell us about your team who was involved, There are 2 project assistants on team, and then all my catalysis division, which I belong to there, they are very supportive. Whole NCL is supportive, everything. Whatever this lab we made it, all team. So everyone I have to thank for them, I think. My team comprises of around 17 members, around 5 research scholars. Already they graduated. Now 3 graduates are now there. They are all already involving on this project, catalyst manufacturing and catalyst, how to manufacturing, how to strengthen it without losses activity and then process. These patents all belongs to, my students are come up in the calculations and everything with all the things they came up with. So I'm very proud of them. Thank you so much. Well, thank you very much for the opportunity.
डीएमई एक कुकिंग के लिए ईंधन है जो एलपीजी का पूरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। डाई मिथाइल ईथर इसका केमिकल नाम है। वो हम मेथनॉल से बनाते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मेथनॉल से लेके हम डीएमई बनाते हैं। उसके लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है और ये कैटलिस्ट हमारा बेसिक इनोवेशन है। ये जो इन्वेंशन हमने किया है, डॉक्टर राजा हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया है, वो एक इस तरह का बढ़िया कैटलिस्ट हमने बनाया है जो कि ना केवल पूरा इंडिया में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ डिपेंडेंसी नहीं है आउटर फॉरेन कंट्रीज़ की, और इसके अलावा उसका जो परफॉर्मेंस है रिएक्शन में वो 100% कन्वर्जन करता है। मेथनॉल से मेथनॉल को लेकर के उसका पूरा डीएमई में कन्वर्ट करता है। 100% कन्वर्जन होता है और जिसकी प्योरिटी जो मिलती है डीएमई की वो भी 100% मिलती है। मतलब और कुछ बनता नहीं है, देयर आर नो इम्प्योरिटीज़। इसीलिए एक बहुत प्योर और क्लीन ईंधन हम हमारी टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। एलपीजी जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल से आता है, बट ये जो मेथनॉल से आप कह रहे हैं 100% तो मेथनॉल तो इंडिया में भी कई तरीकों से बना सकते हैं जी। तो एक तरीके से ये फिर जो इंडिजिनियस कहा जाएगा इसको। बिल्कुल। हाँ, उसके बारे में जी, तो मेथनॉल बनाने के लिए आज हमारे पास कई ऑप्शंस है। एक तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो है कोयले से मेथनॉल बनाना। तो हमारे पास कोयले के बड़े रिजर्व्स है, करीबन 100 बिलियन टन्स के रिजर्व्स कोयले के है। उस कोयले को गैसिफाई करके उसका मेथनॉल बनाना, ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया ने अभी परफेक्ट भी करी है। इंडिया में करीबन 3 या 4 ऐसे पायलट प्लांट्स है जिसमें ये करके दिखाया है कि इंडियन, जिसको हम हाई ऐश कोल कहते हैं, उस हाई ऐश कोल का गैसिफिकेशन करके वो जो सिनगैस बनता है उसका हम मेथनॉल में रूपांतर कर सकते हैं। तो ये एक है। दूसरा है कि बायोमास जो होता है, वुडन बायोमास जो होता है, बायोमास में ब्रॉडली दो टाइप्स के बायोमास होते हैं। एक वेट बायोमास होता है जैसे कि किचन वेस्ट हो या लीव्स वगैरह जो हो, तो उसको लेकर के हम बायोगैस बनाते हैं, जिसका भी अंडर सतत प्रोग्राम काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन होने वाला है भारत में। लेकिन जो वुडेड बायोमास है, लकड़ी जिसे हम कहते हैं, उसका कन्वर्जन अगर करना है तो गैसिफिकेशन इज़ द राइट टेक्नोलॉजी। तो वो वुडन मास गैसिफिकेशन करके उसका मेथनॉल बनाना। हमारा जो 250 किलो का जो पायलट प्लांट आप कह रहे थे उसमें हम यही कर रहे हैं। वुडन बायोमास लेकर के उसका गैसिफिकेशन करके मेथनॉल बनाएंगे और मेथनॉल का हम डाईमिथाइल ईथर डीएमई बनाएंगे। हाँ, तो एक पूरा वैल्यू चेन है उसमें, मेथनॉल कोल से लेकर के डाईमिथाइल ईथर तक। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है भारत में, CO2 से हम डाईमिथाइल ईथर बना सकते हैं। अभी CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस। भारत में करीबन 3 बिलियन टन्स का एमिशन होता है हर साल। कई स्रोत ऐसे हैं CO2 के जो प्योर CO2 मिलता है वहाँ से। तो ये CO2 को लेकर के हमारे पास ऐसे भी कैटलिस्ट है जो CO2 को मेथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेथनॉल से डाईमिथाइल ईथर। सो इंडिया हैज़ मेनी ऑप्शंस जिससे कि हम मेथनॉल बना सकते हैं और डाईमिथाइल ईथर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पूरा आत्मनिर्भर भारत हो सकता है। हमारा तो ये कहना है कि आगे जा करके इन द फ्यूचर क्यों हमें एलपीजी इंपोर्ट करें, पूरा का पूरा हम डीएमई पर कन्वर्ट कर जाए तो इट्स 100% क्लीन कुकिंग फ्यूल। और अगर हम बायोमास से बनाएंगे तो उसके 2 एडवांटेजेस है। एक तो पूरा ग्रीन फ्यूल होगा, वो इट इज़ नॉट फॉसिल यानी कि हम धरती के नीचे से उसको खींचते हैं। दिस इज व्हाट वी बिलीव इज एनर्जी अबाउ द ग्राउंड। जमीन के ऊपर जो कुछ उगता है उससे हम एनर्जी बनाएंगे, तो इट इज़ रिन्यूएबल। तो ये एक एडवांटेज है। और दूसरा आत्मनिर्भरता, किसी पे हम डिपेंड नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। अभी फिलहाल प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कितनी आपने शुरू किया है, या फिर अभी आने वाले दिनों में क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी और उसका किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब एलपीजी के जो प्राइसेस चल रहे हैं इन दिनों। अभी हम इस स्टेज पर है कि हम 250 किलो डीएमई हर दिन बना सकते हैं हमारे पायलट प्लांट से, 250 kg पर डे। हमने जब शुरुआत करी थी तो हम ग्राम लेवल पे बना रहे थे, क्योंकि वहाँ जो रिसर्च चल रहा था, इनोवेशन डिस्कवरीज चल रहे थे, वहाँ से लेकर के हम आज विथ 3 स्टेप्स हम 250 किलो तक आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो गोल है वो उसका 10 टाइम्स हायर कैपेसिटी यानी कि 2500 किलो पर डे या 2.5 टन्स पर डे
ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट होगा। हाँ, ये हम उसके स्टेजेस होते हैं, हम उसके पायलट प्लांट कहते हैं। एक तो मिनी पायलट प्लांट होता है जो आपके पीछे जो है वो 10 किलो पर डे 12 किलो पर डे का मिनी पायलट प्लांट है। उसके नेक्स्ट लेवल है पायलट प्लांट जो हमारा 250 किलो पर डे का है, जो अभी हमने लगाया है। आगे वाली स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट है, वो 2.5 टन्स पर डे, और उसके आगे जाके फुल कमर्शियलाइजेशन। हम डायरेक्टली 500,000 टन पर डे का प्लांट लगा सकते हैं। हाँ, वो एक्चुअल कमर्शियल कैपेसिटी जो है, जो पूरे देश के लिए लगने वाली है, वो करीबन 1000 या 2000 टन्स पर डे इतनी कैपेसिटी होगी। वो हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सर, आपने कहा कि कंप्लीटली एलपीजी को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कॉस्ट। जी, उसको आप लोगों ने कैसे बताया? तो कॉस्ट के बारे में जब हम बोलते हैं तो उसके लिए एक स्केल, क्या स्केल पर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। स्केल इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉस्ट। अगर छोटे स्केल पे करोगे तो वो महंगा होता है, अगर बड़े स्केल पे करोगे तो वो सस्ता हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इफ वी अगर हम डीएमई उसी स्केल पर बनाएंगे जितना कि हम आज एलपीजी यूज कर रहे हैं भारत में, वो करीबन 20 मिलियन टन इतना एलपीजी हम यूज करते हैं। तो अगर उतना डीएमई हम बनाएंगे तो हमारा ये दावा है कि हम 15 से 20% बिलो एलपीजी कॉस्ट हम बना सकते हैं, यूजिंग ऑल इंटरनल रिसोर्सेस। और स्वावलंबन, आत्मनिर्भर। जी, पूरी आत्मनिर्भर। सर, अपनी टीम के बारे में बताइए, आपकी कितनी मेहनत इसमें लगी है, कितनी टीम है, आप लोगों ने काम किया है, और अब इसको आप पायलट प्रोजेक्ट आपने जो लॉन्च कर ही दिया है, उसके बारे में बताइए। डॉक्टर राजा हमारे चीफ इन्वेंटर है इसके, वो कैटालिसिस के एक्सपर्ट है। 2 डेकेड्स का उनकी तपश्चर्या है ये डेवलपमेंट के लिए, और उन्होंने पहले जो शुरुआत करी थी उसके हम कैटलिस्ट, फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट कहते हैं। हर कैटलिस्ट जनरेशन में एक प्रोग्रेस दिखता है। कन्वर्जन ऑफ मेथनॉल टू डाइमिथाइल ईथर इम्प्रूव करते रहो, प्यूरिटी इम्प्रूव करते रहो। पिछले 20 साल में इन्होंने जो कैटलिस्ट बनाया है, आज ये करीबन 5th जनरेशन कैटलिस्ट है, वो हमारे हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतरीन कैटलिस्ट है फॉर मेथनॉल टू डाइमिथाइल ईथर कन्वर्जन, क्योंकि उससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। 100% कन्वर्जन है और 100% प्यूरिटी मिलती है, तो और क्या बोले इसे। सो एंड उस पर वो पैटेंट प्रोटेक्टेड भी है। डॉक्टर राजा और उनकी बड़ी टीम है, सारे स्टूडेंट्स है, कोलैबोरेशन करने वाले साइंटिस्ट है। इसके अलावा हमारे साथ जो इंडस्ट्री पार्टनर्स जुड़े हुए हैं उनका भी उतना ही महत्व है, क्योंकि रिसर्च लैब में हम एक लेवल पर ले जा करके रुकते हैं, उसके आगे जा करके जो इन्वेस्टमेंट लगती है, जो काफ़ी सारे प्रोडक्शन के लिए जो लगता है, वो रिसर्च लैब नहीं कर पाती। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के पास जानी चाहिए, और उसके लिए इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ, उनका जुड़ना हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स है, जिन्होंने ये मिनी पायलट प्लांट हमारा देख करके हमारे साथ काम करके ये पूरा 250 kg पर डे प्लांट डिज़ाइन किया, और ये कॉन्फिडेंस मिला कि हम आगे जाकर के 2.5 टन्स पर डे और आगे जाकर के 1000 टन पर डे का भी प्लांट हम लगा सकते हैं। तो जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है वो कंपनीज हमारे साथ जुड़ी है, वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है, और जो फाइनली प्रोडक्शन में जाएंगे, जो एक्चुअली प्रोड्यूस करेंगे, वो भी कंपनीज हमारे साथ जुड़ी है। आज 2 ऐसी कंपनी हमारे साथ जुड़ी है। एक तो हमारे साथ जो 250 kg पर डे का पायलट प्लांट अभी चला रहे हैं, और दूसरा 2.5 टन्स का डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट भी हमारे साथ चलाएंगे। सर, आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि एंड यूजर कब इसके यूज कर पाएगा, कब आप दे रहे हैं उनको? वो हमारे लिए उसका उत्तर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जो कंपनी प्रोड्यूस करती है उनको वो बेहतर आंसर दे सकते हैं। और एक ही है कि मिनिस्ट्री का एक अप्रूवल लगेगा कि जो बॉटलिंग प्लांट होते हैं ना, हर शहर में एक एलपीजी की बॉटलिंग प्लांट होती है जहाँ से एक्चुअल सिलेंडर भरते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उन बॉटलिंग प्लांट्स को अप्रूवल लगेगा मिनिस्ट्री से कि भाई आप मिक्स कर सकते हो। 8% मिक्सिंग ऑफ एलपीजी विथ डाइमिथाइल ईथर, ये आई थिंक इज द इजीएस्ट सोल्यूशन फॉर इंडिया, क्योंकि उसके लिए ना आपको सिलेंडर बदलना है, ना रेगुलेटर बदलना है, ना होज बदलना है, ना स्टव बदलना है, सारा का सारा वही रहेगा।
आप सिर्फ 8% एलपीजी निकालो और सब्स्टिट्यूट करो डाइमिथाइल ईथर से। 8% लगता है बहुत कम क्वांटिटी है, लेकिन आप अगर पीएम उज्ज्वला योजना का ये करोगे ना, कैलकुलेशंस करोगे, तो उसके लिए ही सिर्फ 11 करोड़ जो सिलेंडर्स के कनेक्शन दे चुके हैं हम रूरल इंडिया में, उसके लिए करीबन 1200 टन पर डे का डीएमई लगेगा, सिर्फ 8% सब्स्टिट्यूशन के लिए। इंडिया बहुत बड़ा देश है, उसका कंजम्पशन बड़ा है, तो बड़ी क्वांटिटी में लगने वाला है ये। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करने के लिए थैंक यू बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच।